Hello students, how are you? I hope you guys have seen the previous lecture for the straight lines we have done. So today we are going to discuss about the pair of straight lines. If you are there, say hi, all of you. Okay. If you are there, say hi, all of you. Fine, so I'm good. What about you guys? I'm good. अच्छा ये बताओ लास्ट वीक का वेबिनार देखा है? हाँ जी देखा है, ठीक है, बढ़िया। सो अगर कोई डाउट्स हैं लास्ट लेक्चर के बिफोर वी स्टार्ट विद द पेयर ऑफ लाइंस, हम वो डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं इफ़ यू गाइज वांट। कोई टॉपिक जो नहीं समझ आया हो, एंगल बाइसेक्टर, राइट? आई लव यू सर, ओके, ठीक है। It's my first video. So what's your name? The person who just said like it's my first video. Okay. Bharti, okay. So welcome to InstaSolve classes. So please watch the previous webinar for sure after this webinar because there will be a lot of things that I will be using today from there. And obviously the new concepts will be taught, okay? So pair of straight lines और आज हमारा जो major discussion रहेगा वो homogenization पे रहेगा which is a big pain point और यहाँ से question confirmed है at least in JEE Advanced मतलब mains में if they want to ask a difficult problem then they might be using this but JEE Advanced में इस particular topic से curve intersection हो गया या pair of tangents हो गया तो वो pair of straight lines पे आता ही आता है, okay? Okay. Sania opening for the first time. क्या बात है? Fine. So welcome to the new students जो पहली बार मतलब आए हैं, right? That's a good thing to have you guys here. Start करें हम? Yes guys, शुरू करें? हाँ जी, ठीक है, बढ़िया है. So basically till last class we have done angle between two lines, we did perpendicular parallel lines, family of lines भी हमें करना था, right? I think that is also there which we could not discuss due to time constraint, but उसको भी हम discuss कर सकते हैं. But pair of straight lines का if I talk in terms of layman's language, दो lines है, right? अब एक ऐसा point जो इन दोनों lines पे it's lying. So how do I write the equation of that? Does maths have applications in card? Poker is totally based on probability. Purely it's a mathematical game. Okay. Yeah. So basically L1, L2, if I talk about this thing, a point satisfying L1 and L2, like it's lying on both of them. So it will either satisfy L1 or L2. So अगर हम एक plane में दो lines की equation बना दें, like if I draw two lines and I take the product, what will this product signify? Either the point has to lie on this or the point has to lie on this. Yes? I think poker हम discuss कर सकते हैं जब probability start होगी. अभी let's focus on straight lines. Okay? Yeah. This part is clear to everyone? L1, L2 represents the equation of pair of straight lines where the point is said to be satisfying both L1 and L2 together, right? तो अब in general हमने जब lines की equation पढ़ी है तो L1 को हम लिख सकते हैं like this, L2 को हम लिख सकते हैं a2x plus b2y plus c2
इक्वल्स टू 0. राइट ऑल ऑफ यू. अब इनका अगर हमें प्रोडक्ट लेना है, yes guys. Yes, this is live obviously. Are you testing it? You're coming for the first time. So you can interact, you can ask your doubts. Okay, so basically what I'm trying to say here, अब जब हम इनका combined equation लिखेंगे, what terms we will have all of you? एक तो x square का टर्म आएगा, yes. Okay, so my name is Harsh Patodia. I think when you have entered the class, you might have seen it, right? And I did my graduation from IIT Roorkee. Okay, yeah. So let's focus on lectures now, and please try to join on time because तो x square का एक टर्म आएगा with some coefficient, xy का टर्म आएगा with some coefficient, y square का टर्म आएगा with some coefficient, then x coefficient, y coefficient and a constant term, right? तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा नीटली यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. x square box means there will be some coefficient, box xy plus box y square plus box x plus box y plus some constant, right? Yes, all of you. Today we are dealing with pair of straight lines, like how to deal with the questions involving pair of straight lines. So यहाँ पे जो major एक concern रहेगा वो रहेगा basically angle between two lines. अब दो lines अगर given है तब तो angle easily निकल जाएगा, right? बोलोगे सर वो तो last time हमने पढ़ा ही था, right? इसमें what is the slope? minus a1 by b1. What is the slope here? minus a2 by b2. इसको लिख देते हैं m1, इसको लिख देते हैं m2. Angle between the two lines क्या होगी all of you? What will be the angle between two lines? I don't understand. So okay, I am repeating it once again. ये हमने दो equations लिए हैं L1 L2 की, ठीक है? I want a pair of lines. Pair of lines मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करे. सो ये मैंने उसका प्रोडक्ट लिख दिया. प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 मतलब वो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा या इसको करेगा, राइट? अब यहां से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो विल गेट समथिंग लाइक दिस. मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म क्या होगी? a1 a2 आ जाएगा यहाँ पे, राइट? वाई स्क्वायर की टर्म क्या होगी? b1 b2. तो मैंने कोफिशिएंट्स नहीं लिखे बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट्स ओनली. यस, दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ना? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट. ओके, परफेक्ट. या हाँ, अब यहाँ पे अगर ये दोनों की हमें स्लोप्स गिवन है ऑल ऑफ यू, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस? डू यू गाइज रिमेंबर एंगल बिटवीन टू लाइंस? लास्ट क्लास में बताया था, राइट? tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2. ठीक है? यस ऑल ऑफ यू, ये याद है सबको? लास्ट टाइम हमने ये चीज पढ़ी थी. Just give me a sec, all of you. ओके, या नहीं याद है भाई, फिर लास्ट वाला वेबिनार देखना पड़ेगा, राइट? इफ दिस नॉट यू नो इन योर हेड. तो ये फॉर्मूला था बेसिकली, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस.
ये थीटा एंगल है, ये m1 है और ये m2 है। लास्ट टाइम हमने थीटा 1 माइनस थीटा 2 के फॉर्म से करी थी, इफ यू गाइज रिमेंबर। हाँ, इफ यू हैव नॉट सीन द लास्ट वीडियो तो ऑब्वियसली आई एम एज्यूमिंग यू गाइज मस्ट बी हैविंग अ बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि आज अगर हमारा थर्ड लेक्चर है राइट, तो ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यू वुड बी हैविंग अ प्रायर नॉलेज बिफोर एंटरिंग द क्लास राइट। कोई बात नहीं है, जितना समझ आ रहा है कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास में मेक श्योर यू आर वॉचिंग, यू हैव वॉच लास्ट 2 वीडियोस, कॉनिक सेक्शंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2। ये दोनों टाइटल्स के वीडियो सर्च करके प्लीज ट्राई टू वॉच इट। फाइन। प्रीवियस वेबिनार्स एकदम ऑर्डर्ड मैनर में एवरी वेडनेसडे सेम टाइम पे आई हैव टेकन लेक्चर्स राइट। तो अभी आज अगर मान लो व्हाट इज द डेट टुडे, क्या डेट है आज ऑल ऑफ यू? या तो 20th और 13th को बेसिकली, हाँ 20th 13th नवंबर को जो ऐप में डला हुआ है और 20th नवंबर को, ये 2 वेबिनार्स हमें देखने हैं आफ्टर वी आर डन विद दिस वन। ओके 21 शायद, ठीक है। एंगल 90 है तो बिल्कुल होगा, एंगल 90 होगा तो क्या कंडीशन होगा, ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ये 0। लास्ट टाइम हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि m1 m2 इक्वल्स टू -1। ओके, ये कंडीशन में लास्ट क्लास में पढ़ी थी है ना। ओके, माय नेम इज हर्ष पटोदिया। यस, सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू, अभी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ये हमें इस फॉर्म में नहीं गिवन होगा। आई एम जस्ट रबिंग दिस मिडिल पार्ट बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, L1 एंड L2 आर गिवन इटसेल्फ। अब हमें जो इक्वेशन गिवन होगा ना वो इस फॉर्म में गिवन होगा, ax² प्लस 2hxy प्लस y² प्लस 2gx, जो कि जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है राइट। जैसे क्वाड्रेटिक में हम लिखते हैं ना 1 डिग्री में ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे हम 2 डिग्री में इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन एक क्या आता है बेसिकली कि सर a और सॉरी यहाँ पे b, आई फॉरगॉट टू राइट दिस वन, a b और c तो सिंगल है, बट h और g और f के आगे 2 क्यों लगा है? इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे, आई कुड हैव रिटन लाइक दिस वे, है ना। ये क्वेश्चन कुछ लोगों को ना मतलब आता है बट इसका आंसर नहीं मिलता है जनरली, ठीक है। कोई लॉजिकल इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या है देखो, x² की टर्म कैसे मिलेगी, एक मल्टीप्लीकेशन से राइट। हाउ डू यू गेट x² टर्म, इस मल्टीप्लीकेशन से। xy की टर्म कैसे मिलेगी ऑल ऑफ यू, सी अरेंज ऑल वेबिनार्स इन चैप्टर वाइज मैनर। डेफिनेटली हम चैप्टर वाइज अभी क्रैश कोर्स काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन, सो डेफिनेटली वी आर टेकिंग योर सजेशंस। अब जैसे मैथ्स के लेक्चर्स जो हैं कोनिक सेक्शंस के वो एवरी वेडनेसडे आ रहे हैं राइट, सो दे आर इन ऑर्डर ओनली, यू जस्ट नीड टू बी रेगुलर। जब तुम रेगुलर हो जाओगे तो यू नीड नॉट अटेंड ऑल द वेबिनार्स बिकॉज ऑल द वेबिनार्स आर नॉट मेंट फॉर यू गाइस। कुछ वेबिनार्स जो हैं नीट वालों के लिए हैं, कुछ जेई वालों के लिए हैं, कुछ करियर गाइडेंस होंगे राइट। सो यू हैव टू सिलेक्ट, लाइक बी इन्फॉर्म्ड। जब भी स्केड्यूल आ रहा है ऐप पे तो व्हाट यू गाइस हैव टू डू, मार्क योर कैलेंडर कि अच्छा ये 27th को आज ये, अब अगले वीक का स्केड्यूल ये है तो मुझे 30th को, 1st को और 3rd को अटेंड करना है, और उसके नीचे टॉपिक लिख लो तो इजीली यू कैन मैनेज इट। फाइन। हाँ, अब XY कैसे आ रहा है ऑल ऑफ यू, XY कैसे ऑब्टेन हो रहा है, एक तो XY ऑब्टेन होगा इसके मल्टीप्लीकेशन से, एक XY ऑब्टेन होगा इसके मल्टीप्लीकेशन से। तो XY कितने मल्टीप्लीकेशन से ऑब्टेन हो रहा है, यस evening में I have other sessions also, so that's why I'm not able to अभी once I'll get little free I'll increase the frequency of lectures, and December में probably like 15 December के बाद we'll have more lectures for mathematics. Fine. So अभी right now I'm very much occupied with other lectures also, so that's why this time slot is available. Okay, yeah. यहाँ पे 2 अब टर्म से आया, सिमिलरली y भी एक ही टर्म से आएगा राइट। अब x का टर्म देखोगे तो एक इससे आएगा x का टर्म, और दूसरा x का टर्म कहाँ से आएगा, इससे। सो यू विल सी दैट जो भी ये 2 वाली टर्म्स हैं ये सिग्निफाई करती हैं कि ये ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लिकेशन से आई है राइट। गॉट इट, कैन यू शो योर टैब, देख लो भाई। ओके, एग्जैक्टली, अंडरस्टूड दिस पार्ट।
तो ये एक बार मैं नीचे का सारा रिमूव कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होती है? बहुत जगह यूज़ होती है। अभी हम स्ट्रेट लाइंस पे फोकस करें प्लीज़। ट्रिग्नोमेट्री को भी डिस्कस कर लेंगे, मतलब ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे माइंड में। हम हर एक वेबिनार में वी कैन टॉपिक वाइज, जब हम स्ट्रेट लाइंस में आ रहे हैं तो ब्रिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइंस। ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट टेल यू द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट देन आवर लेक्चर विल गेट वेस्टेड। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लिमिटेशन, ओके, एंड प्लीज डोंट माइंड, ओके। या सो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है, बट ये जनरल इक्वेशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन की नहीं है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की नहीं है, ये एक सर्कल भी हो सकती है, ये एक पैराबोला भी हो सकती है। देयर आर लॉट ऑफ 2 डिग्री कर्व्स which can be represented by this equation but based on the coefficients, okay, we can have the different set of curves, okay। अगर ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इसको रिप्रेजेंट करना है इस कर्व को, तो उसकी कंडीशन सब लोग बहुत अच्छे से लिख लो एक बार। क्या कंडीशन है? बेसिकली ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर equals to 0. Okay, this part is clear to everyone? In reality straight lines कहाँ यूज होता है? जितने भी तुम्हारे गूगल नेविगेशंस होते हैं, ज्योमेट्री का बेसिक कंपोनेंट है स्ट्रेट लाइन, राइट। तो जब भी हमें मैप्स वगैरह डिज़ाइन करने होते हैं या लेआउट्स बनते हैं, कोई भी नया गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है कंस्ट्रक्शन का, मेट्रो हो गया, तो वहाँ पे विच कॉन्सेप्ट यू आर यूजिंग? स्ट्रेट लाइंस, यस। तो हम बेसिकली बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट्स वी लर्न कि अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है और एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन फॉलो होगी, तो व्हाट विल बी द पाथ विद रिस्पेक्ट टू द गिवन रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ये वाली कंडीशन सबने लिख ली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये लाइन स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट रिप्रेजेंट। अगर ये नहीं ट्रू होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो व्हेन वी विल स्टार्ट विद द कोनिक्स नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वेंसडे या उससे जब भी नेक्स्ट वेंसडे हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा, तो उसमें इफ दिस इज नॉट जीरो, व्हाट अदर कर्व्स इट कैन रिप्रेजेंट, दैट आई विल बी टेलिंग यू गाइस। Fine? The person who is writing again and again, sir, arrange all webinars in chapter wise manner, I've heard it, right? Please do not, do such kind of stuff in the lecture. We are here for studies. Don't create any mess. It's a humble request. Behave like literate people, okay? Yeah. So यहाँ पे ये चीज़ clear है सबको? ABC 2FGH। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी, किसी ने पूछा नहीं सर हाउ। इट मीन्स यू गाइस आर नॉट इंटरेस्टेड कि ये कर्व 2 डिग्री अगर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने कंडीशन निकाली कैसे, मतलब नो वन इज इंटरेस्टेड इन दिस। बिकॉज जनरली जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, मतलब लेक्चर्स विच आई टेक विद अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ पे ये क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि सर ये पेयर ऑफ लाइंस आया तो आया कैसे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसलिए अभी नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज अभी दिस इज इंटेंडेड फॉर ग्रेड 11th, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको आएगा नहीं, और 12th वालों को पहले से ही पता है ये डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म जो है। ये डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो यही कंडीशन आ जाएगा, ओके। अब हाउ का जवाब ये है कि देखो बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है इसका भी, बहुत अच्छी, मतलब इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो लेट्स डू दैट, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy, इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं x लिख लो, राइट, लेट मी रिमूव दिस कंडीशन। मैं पूरा भी डिराइव फुल नहीं करके बताऊंगा, बट आई विल टेल यू द वे टू रीच दैट, ओके।
डेरिवेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट हाँ अपने आप कर सकते हो तुम लोग। मैं पूरा ढंग से प्रोसेस बता दूंगा कि व्हाट प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। इसको हम अगर क्वाड्रेटिक इन वाई लिखें, एक्स लिखें, तो ये एक्स की टर्म्स है, ये एक्स स्क्वायर टर्म है, और बाकी सारी कांस्टेंट में आ जाएगी, बी वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस सी। ठीक है, यस ऑल ऑफ यू, सिर्फ रीअरेंज करा है टर्म्स को। अब इसमें से अगर मैं एच एक्स कॉमन निकाल लूँ यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2h y इंटू 2g प्लस 2g इंटू एक्स। ये स्टेप सबको क्लियर है? यस यस, आई एम गोइंग, आई विल रिपीट इफ रिक्वायर्ड, ओके, डोंट वरी अबाउट द स्पीड, आई विल स्लो इट डाउन। ये सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है मैंने टर्म्स को, ठीक है? यस, 10th ग्रेड में सब लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? अब अगर मैं x की वैल्यू लिखूं यहां से, तो वो क्या आएगी, माइनस दिस पार्ट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इस क्वांटिटी को यहां पे b लिख दो और इसको c लिख दो कैपिटल, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, किसी को डाउट यहां तक? हेलो श्रुति, हाउ आर यू? प्लीज बी ऑन टाइम, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज अदरवाइज यू गाइज विल मिस द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये सबको क्लियर है ना? यू आर लुकिंग गुड टुडे, ओके, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। या द क्लास हैज नॉट येट लोडेड फॉर मी। देखो क्लास में आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि तुम लोग 9:25 पे आ जाया करो एवरी डे। जिनको सीरियसली स्टार्टिंग से लेक्चर्स का मजा लेना है, तो 9:25 पे यू शुड बी लॉग्ड ऑन टू InstaSolve like app, and there you should actually wait for 5-10 minutes for webinar to start, okay? ठीक है, अब यहाँ पे बात यही कि मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स चाहिए, मतलब इसका x शुड बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ y, लीनियर पावर ऑफ y, है ना? यस ऑल ऑफ यू। अब यहाँ तो y लीनियर है, यहाँ पे y जो होगा, अगर मैं इस टर्म को, सिर्फ इस टर्म को एनालाइज करते हैं, इस टर्म को एनालाइज करेंगे तो क्या आएगा, 2hy प्लस 2g होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c, राइट? अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये होगा अंडर रूट। क्या हमने कभी कोई ऐसी लीनियर इक्वेशन देखी है जो ऐसे फॉर्म में हो, x इक्वल्स टू ay प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3? क्या इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना? सर ये क्या किया है? देखो भाई, कॉन्सेंट्रेशन अपना रखो क्लास में प्रॉपरली। ये मैंने क्या किया है, सिर्फ आई हैव जस्ट सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ b। ये हमारा b था ना, ये b स्क्वायर लिखा है, ये 4ac लिखा है। हम किसको, हाँ हम किसको एनालाइज कर रहे हैं? हम प्रूफ कर रहे हैं कि वो जो कंडीशन हमारी आई थी ना, द कंडीशन दैट वी गॉट, ये जो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करके बेसिकली यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने लिखी थी, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए मैंने कहा था ना, देखते ही हम बता सकते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगी या नहीं होगी, है ना? हेलो सुनील, हाउ आर यू? या सो हम ये प्रूफ करें कंडीशन आती कैसे है, मतलब किसी ने जस्ट रिजल्ट ऐसे लिख दिया या एक्चुअली इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, ओके? यस, हाँ। अब मुझे इसको लीनियर बनाना है, मतलब अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने का क्या मतलब है कि द इनसाइड क्वांटिटी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यस यस ऑल ऑफ यू। जो ये अंदर वाली क्वांटिटी है, ये क्या है बेसिकली, दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हेलो सुमन, हाउ आर यू? प्लीज बी ऑन टाइम, ओके? We have started with pair of straight lines. We have derived the equation of line. Now we are proving that how this condition will represent pair of straight lines. Okay? Yeah. So ये perfect square, अब ये quadratic in y है, right? Quadratic in y, all of you will agree?
ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या है? क्वाड्रेटिक इन y. So when does the quadratic equation becomes a perfect square? When does the quadratic equation becomes a perfect square? आंसर चाहिए मुझे इस चीज का. Perfect. What's your name? D equals to 0. जब भी आंसर देते हो अपना नाम प्लीज लिख दिया करो. We are getting the update and in the next update your names will be visible to us. Good job महक. नहीं, जो अगली बार से आंसर दे रहे पहले अपना नाम लिख दे, वरना क्या होगा, आंसर एक जने ने लिख दिया, उसके नीचे 10 नाम आ गए, है ना, तो आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज यू. ठीक है, नेक्स्ट टाइम से केयरफुल, बी केयरफुल अबाउट दैट. सो यहाँ पे हमने क्या बोला, इसका डी अगर हम 0 कर देंगे, इस इक्वेशन का डी, इस इक्वेशन के डी के 0 की कंडीशन यही है. अब जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, ओपन करोगे, तो यू विल गेट द डी ऑफ दिस इक्वेशन, दिस वन. अंडरस्टूड? गॉट इट एवरीवन? समझ आया कि व्हेन डज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इन y लिखेंगे, उसका सोल्यूशन लिखेंगे, जो उसका ये अंडर रूट वाला पार्ट आएगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो d इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है वो ये आएगी. क्लियर है एकदम? वीडियो नॉट विजिबल, चेक योर इंटरनेट. क्रिस्टल क्लियर एकदम सबको? अब ये अभी तक ये सब चीजें बहुत गंदी गंदी लग रही थी. अब देखो, अब अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x² माइनस 3xy प्लस 6y² प्लस लेट्स से hx plus 3. Now the question is, for what value of h this will represent a pair of straight lines? सर आपने तो मेरी आंखें खोल दी. ओके, मैट्रिक्स फॉर्म मैंने ऑलरेडी लिखा था ना. देखो ए बी सी डायगनली लिखना है, ठीक है, एच जी एच जी एच जी एच जी और यहाँ पे एफ एफ. ठीक है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं. जो 12th वाले लोग हैं उनको पता होता है. 11th में जो लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ लोग नहीं पढ़ते, राइट. तो मैंने इसलिए वो, ये बेसिकली इसको सॉल्व तो करोगे ना, चाहे डिटर्मिनेंट भी आता हो, अल्टीमेटली तो सॉल्व करोगे. तो इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो कि हम इजीली फटाफट कर सकते हैं. मतलब डिटर्मिनेंट लिखना ही ज़रूरी नहीं है सिर्फ, इससे भी काम चल जाता है. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं सेव करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हर बार लिखना नहीं है, सीधा वैल्यूज डालनी है. ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का बहुत अच्छा तरीका है याद करने का. देखो ए बी सी सिंगल कोफिशिएंट थे तो 1 आ गया, एफ जी एच के 2 कोफिशिएंट था 2 आ गया, है ना. अब पेयरिंग करनी है. देखो ए एच स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर, और वो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा. 2 क्यों आया? क्योंकि एफ का कोफिशिएंट 2 था, जी के भी कोफिशिएंट में 2 था. तो ये फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं बिना डिटर्मिनेंट के. ठीक है, अब मुझे इसका आंसर बताओ. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच द अबव इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. और अपने नाम के साथ आंसर देना, वरना क्रेडिट कोई और ले जाएगा. डाउट्स अभी यहीं पूछ लो क्लास में, बिल्कुल जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं. और टाइम पे आओ. स्टार्टिंग में आई, द फर्स्ट थिंग आई विल ऑलवेज आस्क इन द क्लास इज, इफ यू हैव डाउट्स ऑन द प्रीवियस वेबिनार्स वी विल फर्स्ट डिस्कस दैट. बट अब क्लास के बीच में अगर पिछली क्लास के हम डाउट्स पूछेंगे तो फ्लो टूट जाएगा. तो मे बी एट द एंड रिमाइंड मी 10 मिनट्स, 10:20 PM पे याद दिला देना. 10:20 PM से हम जनरेट डाउट्स कर सकते हैं लास्ट में. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस.
So guys, I am just having a water, like, you know, a glass of water. Just give me a sec. H आया है 2, H आया है 9, सुमन 2, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना जरूरी है, A क्या है हमारा, A है 2, जो इस इक्वेशन में H होता है वो क्या है, ये तो यहाँ पे एज अ कोफिशिएंट H दे दिया, ये हमारा एक्चुअल H नहीं है, राइट। H क्या है ऑल ऑफ यू, व्हाट इज H। अब यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक होती है लोगों की, लोग H को लिख देंगे -3, ओरिजिनल इक्वेशन में क्या था, इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करो। यस ऑल ऑफ यू, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पे हम लोग अभी प्रैक्टिस नहीं करके रखते हैं, तो इसको सीधा -3 लिख देते हैं, राइट। B क्या है हमारा 6, G क्या है H/2। तो जो भी इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू होती है ना, x, y और h, उसको बाय 2 करना है व्हेन यू आर राइटिंग हियर। F क्या है यहाँ पे, F 0 है और C 3 है। कंडीशन क्या थी, A B C, तो A B C का प्रोडक्ट क्या होगा 36 माइनस, अब देखो F 0 हो गया तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया, प्लस 2FGH वाली टर्म 0 हो गई, राइट। F 0 है बिल्कुल, पानी पी लो थोड़ा, अभी पिया है पानी, राइट। आई एम फ्रेश नाउ, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। हाँ 36, जो 2FGH वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कोई भी y की टर्म नहीं है। कोई y की टर्म दिख रही है किसी को यहाँ पे, ओनली y की, देयर इज नो टर्म, राइट। कंपेयर कर दिया ना। अब a के साथ कौन सा था, AF², राइट। सो AF² भी 0 हो गया। BG² क्या होगा ऑल ऑफ यू, B is 6, G is H/2 माइनस CH², C क्या है 3, H क्या है -3/2 होल स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। 36 ये हो जाएगा 3/2, 6/4 विल बी इक्वल टू 3/2 H² माइनस ये हो जाएगा 9/4, आई थिंक अब इसको हर कोई सॉल्व कर सकता है, राइट। यू डोंट नीड माई हेल्प टू सॉल्व दिस वन। यस, आई एम फ्रॉम IIT रुड़की। ये क्लियर है सबको, ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया ऑल ऑफ यू यहाँ पे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ABC + 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ये फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे। ABC के ये वैल्यूज हैं। सब लोग एक बार अपने आप फिर से ये करके देखो, इफ यू आर नॉट क्लियर विद द प्रोसीजर देन लेट मी नो। मेंस NIT के लिए 300 में से एटलीस्ट यू नीड टू स्कोर 180+ टू गेट टॉप NITs, टॉप 7 NITs। IIT के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स वो अभी इस वेबिनार में नहीं देंगे, उसके लिए अलग से वेबिनार आ रहा है। और तुम लोग बाकी अभी जैसे क्लास ओवर होती है ना, प्लीज गो थ्रू द अदर टॉपिक्स। जो नीचे जब ऐप में स्क्रॉल करोगे देर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, अब जैसे लॉट ऑफ वेबिनार्स विच हैव बीन डिलीवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू स्कोर 99.5 परसेंटाइल इन JEE, वो सारी चीज़ें लेक्चर्स ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, तो यू गाइस कैन गो बैक एंड वॉच इट, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, वो तो कर ही सकते हो, राइट, है ना। सर मैं तो आपका फ़ैन ही हो गया, ओके। क्या पढ़ाते हो आप,
इससे पता लग रहा है कितना समझ आ रहे हैं। अच्छा, वो तारीफ कर रहे थे, क्या पढ़ाते हो आप? जब भी तारीफ करते हो ना, क्या पढ़ाते हो आप, तो एक्सक्लेमेशन लिखना चाहिए, नहीं तो टीचर के मन में डाउट आ जाता है ना। ये क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे वो वाले बच्चे भी हैं, सही है, ओके। वलार मोर्गलिस, ओके। ठीक है, वो वाले बोले तो किसी ने नोटिस कर लिया ना एकदम, जीओटी फैंस, आई मेंट जीओटी फैंस, 18+ वाले, एग्जैक्टली। समझदार हो एकदम, भावनाओं को समझ जाते हो अच्छे से, है ना। चले आगे, चले आप मेन मुद्दे वाली बात पे हैं। इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। अब मान लो ये h की वैल्यू यहाँ से कुछ भी आ गई, या लेट से इसको पूरा ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नोट कर लिया ना सबने? शुड आई क्लियर द बोर्ड? ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता करना है एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखो, एंगल का फॉर्मूला तुम्हें हर जगह मिल जाएगा और बहुत इजी भी है, मतलब बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बट जब तक कंसेप्चुअली समझ नहीं आता है तब तक इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है कि आया कैसे। बहुत सारे बुक्स में यू विल गेट दिस फॉर्मूला लाइक दिस, डेरिवेशंस भी गिवन होते हैं, बट डेरिवेशंस कन्विंसिंग नहीं होते हैं, मतलब मज़ा नहीं आएगा पढ़ के, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हमें ये दिख रही है कि ए, एच और बी का ही इन्वॉल्वमेंट है, जी, एफ और सी फॉर्मूले में नहीं है। तो पहला तो क्वेश्चन ये कि सर ये आपने फॉर्मूला क्यों लिखा है? हमें तो ये सीखना है कि आया कैसे। बिल्कुल सही बात है, इसको हम हटा देते हैं, ये बाद में डिराइव हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब ये देखो, बेसिकली यू गाइस हैव टू सी दिस थिंग कि जब हमने लाइन की इक्वेशन डिराइव करी यहाँ पे, ठीक है, जब हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते हैं यहाँ से, क्या इसमें सी का कोई कंट्रीब्यूशन होता है एंगल बिटवीन द टू लाइंस में? ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है, क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन है? यस ऑल ऑफ यू, क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन है फॉर गेटिंग द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस? एंगल किससे निकलता है? कब कब पढ़ाते हो वाली चीज अभी डिस्कस करते हैं, पहले अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर प्लीज फोकस गाइस, ठीक है। ये इन्हीं दो पे डिपेंड करता है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये सी नहीं होता तो ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही होती, मानते हो? ये दो लाइंस ओरिजिन से पास कर रही होती कहीं ना कहीं, और ये एंगल हम निकालते, है ना। अब ये सी होने की वजह से क्या हो गया, ये लाइंस ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, बट इन्हीं के पैरेलल कोई लाइंस हैं। मतलब अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो मान लो एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, अब मान लो ये इंटरसेक्ट कहीं भी करें, एंगल तो सेम ही रहेगा ना, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। वंस अगेन, चलो लेट मी मेक अ बेटर डायग्राम फॉर दिस वन। अगर ये C1 और C2 0 होते तो ये दोनों लाइंस ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती, मानते हो? नहीं, अब समझ आएगा। अब आगे हम अभी हमारा एजेंडा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द एजेंडा? एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये इक्वेशन आई कहाँ से? दिस इक्वेशन हैज कम फ्रॉम हियर ओनली। ये इक्वेशन अभी हमारे पास है नहीं, बट इससे हम एंगल कैसे निकालेंगे, दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस, ओके। सो यहाँ पे उसके लिए हमें ये समझने वाली जरूरत, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इससे ये वाली इक्वेशन आ रही है तो वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से एंगल बिटवीन द टू लाइंस आता है, ओके।
तो अब यहाँ पे हम समझ ये रहे हैं कि C1 C2 अगर नहीं भी होते, मान लो कि कांस्टेंट टर्म्स होती नहीं, तो ये दो लाइंस कौन सी होती? लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कोई भी दो लाइंस हो सकती थी। तो यहां पे हम ये दो लाइंस की बात करें, राइट? ये एंगल होता, इसको हम कौन से फॉर्मूले से निकालते? वही जो हमने पढ़ा था, m1 माइनस m2, इसी से निकालते ना। डाउट्स के लिए अभी 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद डाउट्स लेंगे, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चन आएगा जेईई एडवांस में, ठीक है? 100%, ठीक है? अब यहां पे अगर मान लो इसके पैरेलल लाइन ले लें हम, ठीक है, और इसके एक पैरेलल लाइन ले लें, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अब ये एंगल और ये एंगल सेम ही होंगे ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल तो सेम ही होगा, है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम C1 C2 को नेग्लेक्ट भी कर दें तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहां पे अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि C1 C2 अभी है ही नहीं, तो C1 C2 अगर नहीं होंगे, लाइंस पैरेलली शिफ्ट हो जाएंगी ओरिजिन पे, बट उनके बीच का एंगल चेंज नहीं होगा। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, ओके? या सो अब यहां पे जो C नहीं होगा तो ये वाले सब टर्म्स गायब हो जाएंगे, C 0 है क्योंकि दोनों का ही C 0 है। तो अब हमारा बेसिकली जो क्वेश्चन रह गया वो बहुत सिंपल हो गया। अब ये हमारी पेयर ऑफ लाइंस है, इनको हमने प्रोडक्ट लिया और ये आ गया। जो इनका कांस्टेंट वाला पार्ट था वो अगर आगे होगा भी तो इट्स जस्ट लाइक लाइंस आर पैरेलली ट्रांसफर्ड, ठीक है? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्लियर है सबको? एग्जाम्पल तो करेंगे ही, पहले कभी भी किसी चीज की थ्योरी करते हैं फिर एग्जाम्पल करते हैं ना। जैसे अभी इसके पहले हमने इक्वेशन ऑफ जब वो करा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h द गिवन लाइन विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसके बाद काफी लोगों को क्लियर हुआ था ना। वैसे सेम थिंग गोज विद दिस ऑल्सो, ठीक है? ये सबको क्लियर है आपसे कि ये दो पेयर ऑफ लाइंस हैं, इट डजंट मैटर वेदर दे आर हैविंग दैट C पार्ट और नॉट, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एंगल दे आर मेकिंग विद ईच अदर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहां से a क्या आ गया ऑल ऑफ यू? a क्या आ गया? a1 a2, h क्या आ गया? बेसिकली 2h ही लिख लेते हैं, a1 b2 प्लस a2 b1, और b क्या आ गया? b1 b2। अब ओरिजिनली अगर हमें इसका एंगल निकालना होगा तो यहां पे स्लोप्स क्या है? माइनस a1 बाई b1 माइनस a2 बाई b2, है ना? क्लियर है ना? अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? देखो एंगल हम निकाल यहां से रहे हैं, बट हमें कोरिलेट करना है ए एच और बी से, तो यहां से निकाल के ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इसके टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे वो भी बताता हूं अभी, ठीक है? यहां पे बस अभी बस इस पे फोकस करो, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, ये निकाल लो। m1 माइनस m2 को अगर हम लिखेंगे m1 इज माइनस a1 बाई b1 प्लस a2 बाई b2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब यहां पे देखो ये प्लस था, दोनों माइनस माइनस प्लस ही रहेंगे, राइट? तो a1 a2 बाय b1 b2। ये क्लियर है सबको यहां तक? एंगल बिटवीन टू लाइंस, बेसिक फॉर्मूला लगाया, दोनों स्लोप्स को यहां रख दिया, ठीक है?
अब मैं एक बार चीज ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूं यहां से, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो -a1b2 प्लस b1a2, नीचे जो b1b2 होगा वो इस वाले b1b2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी एक, इसकी क्या वैल्यू है b1b2 की, b1b2 इज b, a1a2 इज a, नीचे का काम तो हो गया a प्लस b। अब ऊपर क्या गिवन है, a1b2 माइनस में, अगर प्लस में होता तो डायरेक्ट आ जाता, प्लस में होता तो बहुत इजीली आ जाता ना, प्लस में होता तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते। अब क्योंकि प्लस में नहीं है तो हमने a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में क्या रिलेशन पढ़ा हुआ है बचपन में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी? इफ यू गाइज रिमेंबर, a माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सबको याद है ना? तो अब यहाँ पे ये a माइनस बी गिवन है, मान लो ये a प्लस बी गिवन है और यहाँ पे ए बी गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, दिस स्क्वायर इज व्हाट, 4h स्क्वायर। ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab, 4ab इज व्हाट, दिस पार्ट, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ तो ये चीज, ये देख लो यहाँ पे a क्या है हमारा, a इज a2b1 और b इज a1b2। इसके हिसाब से मैं सारे टर्म्स लिख रहा हूं, ये जो सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, अब यहाँ पे ये इसके अंडर रूट भी आ जाएगा, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ, यही फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम, और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, एक और सिंपल तरीके से करते हैं इस चीज को, ठीक है, करें, इतना नोट कर लिया सबने? दिस इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ओके। देखो नाम मेरा मैंने बता दिया, राइट। अब नंबर तुम लोग ढूंढो कहां से मिलेगा, है ना? डाउट्स यहाँ पे टाइप नहीं कर पाऊंगा, अच्छा इक्वेशन वाले डाउट्स हैं, देखो ये फीचर ऐड हो जाएगा अभी कि हम चैट्स में फोटो क्लिक करके डाउट्स भेज पाएंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट एडिशन में हम ये ऐड करवा देंगे, ओके। दूसरी चीज़ ऑब्ट्यूस एंगल वाली चीज़ है, ऑब्ट्यूस एंगल वाला चीज़ हमने पहले डिस्कस किया था, ये जो मॉड्यूलस हम लगाते हैं ना, तो वो सेम मॉड्यूलस यहाँ पे भी लग जाएगा, तो प्लस माइनस आके वो ऑब्ट्यूस हो जाता है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं कवर कर चुका हूँ, इसलिए मैंने आज रिपीट नहीं किया है। अच्छा, एज आई वाज सेइंग कि इसका एक बहुत ईजी तरीका भी है, तो अब लाइन्स की जो इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन y माइनस m1x एंड y माइनस m2x, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, y स्क्वायर माइनस, अब देखो ये होगा m1 xy माइनस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है। हमने जो c वाला टर्म है वो नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि उससे एंगल पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली यहाँ डायमेंशंस कहाँ से आ गई, y माइनस m1x ये लाइन 1 है, y माइनस m2x ये लाइन 2 है, प्रोडक्ट लिया ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, सारे तो डायमेंशन ठीक है एकदम। ये क्लियर है सबको? अब a क्या आ रहा है यहाँ पे, m1 m2, b क्या आ रहा है 1 और 2h क्या आ रहा है
एक्स वाई अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस ऑफ m1 प्लस m2। क्लियर है? एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या होता है? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब m1 माइनस m2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली? m1 प्लस m2 की फॉर्म में। अभी हमने पढ़ा है m1 माइनस m2 कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आ जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको? 1 की जगह पे b रख दो, m1 m2 की जगह पे a रख दो और इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो। नींद नहीं आ रही? ऐसा क्या हो गया भाई लाइफ में? बस अब एक एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद डाउट्स ले लेंगे, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हमारे पास C1 भी होता ना बेसिकली और यहाँ C2 भी होता तो उससे कुछ टर्म्स आगे ऐड हो जाती, बट उससे हमारे एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल का सिर्फ पार्टिसिपेशन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई के टर्म से आएगा। ओके? अच्छा, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा? अगली बार से मैं जोक प्रिपेयर करके आऊँगा एक क्लास के एंड के लिए, ठीक है? गिवन 4 लाइन्स, ये वाला L1, L2, L3, L4। ये प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास के बिगनिंग में डिस्कस करते हैं, अभी पहले आज का एजेंडा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? अभी सुनाओ ना प्लीज, ठीक है? काश अभी सुना सकता। चलें आगे गाइस, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेकेंड रुको, मैं वैल्यूज ऑफ लाइन लिख रहा हूं अपने आप। Find the angle between the pair of lines. I am from means, are you talking about my education background or where I am living right now? चलो देखते हैं इस बार सही आंसर आया कि नहीं आया। एच क्या है हमारा? माइनस हाफ, ए इज 2, बी इज -3। सो एच स्क्वायर इज 1/4, एच स्क्वायर माइनस ए बी, so this is -6, right? So it will become +6 divided by a plus b, ठीक है? सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 25/4 ओवर -1। इसका मॉडुलस भी है, ये हो जाएगा 5/2, तो आंसर आ जाएगा 5, मतलब ±5। आई एम फ्रॉम IIT रुड़की। एवरीवन अंडरस्टूड? गलती हम लोग कहाँ कर रहे हैं अभी भी? पीपल आर डूइंग इट रॉन्ग। हम लोग एच का वैल्यू गलत लिख रहे हैं अभी भी।
150 प्लस में NIT अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ब्रांच 100 मिलेगी फिर। ये क्लियर है सबको? ठीक है। वैल्यू ऑफ एच इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस ना। देखो कंपेयर करना सीखो, ax² प्लस 2hxy। तो पहले तो 2 डिग्री जो आज कर्व है, सबसे पहले जाके लोग प्लीज प्रैक्टिस ऑन जनरल 2 डिग्री इक्वेशंस। देखो आई हैव टू बी लिटिल फास्ट बिकॉज वी डोंट हैव टाइम फॉर 1 ईयर टू कंप्लीट दिस। तो अभी थोड़ा मैं वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो जेई में आएगी ही आएगी, राइट? सो दैट अगर ये चीज़ें तुम थोड़ा पढ़ के आते हो और थोड़ा यहाँ समझते हो तो क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो जेई में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है फ्रॉम स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद फिर सर्कल्स करेंगे, पैराबोला, कोनिक्स एंड एलिप्स। ठीक है। ठीक है। क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में कितने सुंदर पिच हैं भाई। विच कोट? मैं भूल गया कौन सी कोट की बात कर रहे हो। चलो एक पीएनसी का डाउट ले लेते हैं, ठीक है, स्पेशल रिक्वेस्ट पे। इसको हम कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके आगे जो है एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बाद फिर हमारा आ जाएगा होमोजेनाइजेशन। वो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस कर लेंगे फटाफट, ठीक है। बट प्लीज आज जो लोग आए हैं प्लीज मेक श्योर हम नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करें फॉर कोनिक सेक्शंस लाइक, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी आज 3 था, अगली बार 4 हो जाएगा, राइट? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 की जो अगली क्लास है उसके लिए प्लीज डू नॉट मिस, क्योंकि नहीं तो आज का 1 घंटा ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पैराबोला का कोट, ये कौन सा कोट है भाई? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी 4 लेटर्स आउट ऑफ द वर्ड। एक सेकंड रुक जाओ भाई, प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग। प्रपोर्शन, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना? ये डाउट है इसमें, क्वेश्चन में क्या है कि हमें 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सर हाइपरबोला का कोड भी बता देना। अच्छा क्वेश्चंस की बात कर रहे हो क्या? क्वेश्चंस हम सारे वो करेंगे कंफर्म जो जेई में आने की प्रोबेबिलिटी जिसकी बहुत हाई है, ठीक है। हाँ, 10p4 क्यों होगा भाई? 10p4 में तुम मान लो, एक बात बताओ, ये वाला p सिलेक्ट कर रहे हो, ये वाला p सिलेक्ट कर रहे हो, कोई डिफरेंस है? मान लो तुमने सिलेक्ट किया PROT, अब ये वाला p और ये वाला p अलग अलग तो नहीं है ना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक केसेस। केसेस कैसे रहेंगे? पहला हमने केस लिया कि जिसमें सारे वर्ड्स अलग हैं। पहला केस क्या है? ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। ऑल आर डिफरेंट बोले तो 1 2 3 4 5 6 64, ठीक है। फिर अगला केस क्या बनेगा? अगला केस क्या बनेगा? 1 पेयर 2 डिफरेंट। अब पेयर्स के कितने ऑप्शन है हमारे पास? ऑल ऑफ यू, पेयर्स के कितने ऑप्शन है? इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, मतलब इसके हम 2 उठा सकते हैं, इसके 2 उठा सकते हैं, इसके 2 उठा सकते हैं, राइट? यस। 4 अलग 4 डिफरेंट। अरे भाई 4 अलग कहाँ से हो जाएंगे? अभी एक एक करके चलेंगे ना। पहले हमने बोला चारों अलग हैं तो 64। अब हम बोल रहे हैं कि एक अलग है, एक पेयर हमने सेम लिया और 2 डिफरेंट है, तो टोटल पेयर्स कितने बन सकते हैं? 3। उन तीनों में से एक लेंगे, उन तीनों में से एक लेंगे, राइट? और बाकी, अब मान लो हमने p वाला पेयर ले लिया, तो बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5। या मान लो r का लिया तो POTIN। अब इन पांचों में से कितने लेने हैं हमें? और 2। क्लियर है? प्रोटीन की स्पेलिंग गलत है। प्रोटीन कहाँ से आ गया? प्रोपोर्शन लिखा है भाई। ठीक है, बिल्कुल, तभी मैंने उसी के हिसाब से मार्क्स भी एडजस्टेड बताए हैं 300 में से।
ये मैंने पता क्या लिखा है, अच्छा क्वेश्चन ये था कि प्रपोर्शन में से, तो जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं ना, उसको इस फॉर्म में लिख लो कि जो भी रिपीटेड लेटर्स हैं वो नीचे आ जाएं और जो डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं वो फर्स्ट रो में रहें, ठीक है? हाँ ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 अगली क्लास में करेंगे, अब इस पे फोकस कर लो अभी। अगला केस क्या होगा ऑल ऑफ यू? 2 पेयर्स। तो 2 पेयर्स में क्या होगा? अब हमारे पास 1 2 3 ये 3 लोगों के लिए ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे 2 पेयर्स में क्या होगा? 3C2। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट तो सिर्फ ओ का ही पॉसिबल है, तो कोई चॉइस ही नहीं है। 3 ओ हमने ले लिए, बाकी 5 में से एक लेना है, 5C1। और कोई ऑप्शन है, और कोई केस है? तो ऐसे हमें सारे डिफरेंट से एक अलाइक, 2 अलाइक और फिर एक ट्रिपलेट, फ्रॉम लीस्ट सिमिट्री टू मोस्ट सिमिट्री वी हैव टू मूव, ठीक है? फिर इनको अगर अरेंज भी करना है तो अरेंजमेंट तो सबको आता ही है। इस केस में 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट? ठीक है, आंसर निकाल लो यार। मैंने देखो कॉन्सेप्ट बता दिया पूरा, अब 64 तो कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है? पैटर्न ऑफ जेईई मेंस हैव चेंज, ओके? 75 क्वेश्चंस होंगे अब इंस्टेड ऑफ 90, 300 मार्क्स का पेपर होगा इंस्टेड ऑफ 360, ठीक है? देर हो रही है, बस चलते हैं फिर। एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ, 0 फैक्टोरियल जिसका डाउट था 1, n फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n-1 फैक्टोरियल, है ना? यहाँ पे n को 1 डाल लो, 1 फैक्टोरियल 1 0 फैक्टोरियल, तो ये 1 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल भी 1 है, तो 0 फैक्टोरियल 1 आ गया, ठीक है? चले गाइस, मेट्रो छूट जाएगी। आई डोंट ट्रेवल बाय मेट्रो एक्चुअली, सो मेट्रो नहीं छूटेगी। चले गाइस फिर, चलो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ बी रेगुलर अबाउट द क्लासेस। ऐसे इरेगुलरली लेक्चर्स वॉच करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग एनी मैजिक, राइट? खास करके उन लेक्चर सीरीज में जो कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हम 1 2 3 लेक्चर देख रहे हैं ना, वहाँ पे हम ज़रूर पुराने लेक्चर्स देख के आएँ, वरना करंट लेक्चर में ना तो मज़ा आएगा और ना इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है? चलो बाय गाइस, बाकी डाउट्स हम नेक्स्ट क्लास में फिर से करते हैं, ठीक है? चलो गुड बाय।